Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu wa rasuluhu. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے ویڈیو دیکھنی ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو ہے، جن کی ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے اگر میں تمہیں مطمئن نہ کر سکا تو میں خود عیسائی ہو جاؤں گا، اگر میں نے تمہیں مطمئن کر دیا تو پھر میں تمہیں مسلمان بھی کروں گا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسے مطمئن کیا یا نہ کیا۔ عیسائیت وہ دین ہے جس میں خدا نے انسانوں سے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ بائبل میں کہا گیا کہ خدا کو دنیا سے اتنا پیار ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا۔ جو بھی اس کے بیٹے کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ عیسائیت میں خدا نے انسانوں کو اپنی تخلیق نہیں بلکہ بیٹے کہا ہے۔ اس چیز کو ہم اسلام میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کی مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ سزا پائے گا۔ اسی لیے مسلمان خدا سے ڈرتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جانا چاہتے۔ ناظرین، یہ سوال ایک عیسائی خاتون نے کیا تھا جو قرآن پاک کا علم ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ عیسائیت میں اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ جتنے بھی گناہ کر لیں خدا اپنے بیٹوں کو پھر بھی جنت میں داخل کر لے گا۔ In Christianity we have the most popular verse is John 3:16. For God so loved the world that he gave his only one son, that whoever believes in him shall not perish but he will have eternal life. In Christianity God calls people not creation but childs. So he loves the world. As I understood in Qur'aan, if you don't obey, I don't love. If you obey, you're accepted and loved. Can you please give your comments? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ جو آپ نے حوالہ دیا اس میں ایک غلطی ہے۔ اکلوتا بیٹا نہیں لکھا، صرف بیٹا لکھا ہے، کیونکہ بائبل میں نے کہیں بھی only son کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بائبل کو پڑھیں تو اس میں ابراہیم، موسیٰ سمیت سب کو بیٹا یعنی سن کہا گیا ہے۔ غرض کہ جو بھی دین کی پیروی کرے اس کو سن کہا گیا ہے۔ تو بہن، آپ کی بائبل غلط ہے، کیونکہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جیسس اکلوتے بیٹے ہیں، ایک جگہ لکھا ہے سب خدا کے بیٹے ہیں۔ تو خدا کا کلام کیسے اس طرح کی غلطی سے پاک نہیں ہے؟ یہ دلیل سن کر ہال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ بہن، آپ کیوں ایسی کتاب کی پیروی کر رہی ہیں جس میں تضادات ہیں؟ اس کی بجائے قرآن پاک کی مانیں جس میں لکھی 80% باتیں درست ہیں۔ اگر ایک بھی غلطی دکھا دے تو خلاص، میں آپ کی بات مان لوں گا کہ آپ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اگر یہ کتاب قرآن پاک کسی انسان نے لکھی ہوتی تو اس میں بھی تضادات ہوتے، جیسے کہ بائبل میں سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بائبل سے 100 سے زائد تضادات بیان کر سکتا ہوں، مگر میں دبئی تضادات پر بات کرنے نہیں آیا۔ بہن، آپ کے سوال کی طرف واپس آؤں تو قرآن پاک میں 2 جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ منصف بھی ہے۔ اگر آپ سے صرف بحث کی خاطر میں مان لوں کہ گوسپل آف جانز کے مطابق خدا سب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ جو بھی کریں آپ بخشے جائیں گے، تو مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جیسس جو سب سے پیارے بیٹے ہیں ان کی قربانی لی گئی؟ مثال کے طور پر میں ایک کمپنی چلاتا ہوں اور اپنے ملازموں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں تمہاری خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتا ہوں۔ کوئی یقین کرے گا؟ ایک کمپنی کا مالک جو اپنے ملازموں سے پیار کرتا اور کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر اپنے بیٹے کی قربانی کرتا ہوں تاکہ تم سب جنت میں چلے جاؤ، کیا یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ پھر اگر چرچ کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسس نے ہم سب عیسائیوں کے گناہوں کی سزا بھگت لی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں عیسائی بن جاؤں تو پھر قتل کروں، ریپ کروں یا کوئی بھی جرم کروں، میرے گناہوں کی سزا تو جیسس نے بھگت لی ہے، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا۔ If he's paid for your sin, that means I can murder. I believe in Jesus and I commit murder, I will go to heaven. I believe in Jesus, I commit rape, I'll go to heaven, correct? Because my sins have been paid for, correct sister? That means according to your teaching, even if any Christian does murder, if he rapes, if he robs, if he kills, as long as he believes in Jesus, he will go to paradise, correct? That means your teaching is teaching that you can do inhuman things, correct sister? No, not agree. I mean... Not agree. Sorry. If, sister, I am quoting, Yes. God so loved the world that he gave his only begotten son,
whosoever believeth in him shall have. That means you believe that Jesus died for your sins, peace be upon him. You do anything in the world, you will go to heaven. This is the teaching of the church, correct? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही फर्क चर्च और इस्लाम की तालीमात में है कि अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो आपको उसके अहकामात भी मानना होंगे। आप कहें कि मुझे खुदा से प्यार है और कत्ल करें, चाहे रेप, जन्नत में टिकट पक्की है। कहां लिखा है कि जीसस तुम्हारे गुनाहों की सजा लेने के लिए सूली पर चढ़ गए? ये चर्च की तालीमात हैं, ईसाईयत की नहीं। मैं उस ईसाईयत की बात नहीं करता जिसको चर्च ने सिखाया है, मैं उस ईसाईयत की बात करता हूं जिसको जीसस ने सिखाया है। बहन, पूरी बाइबल में कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें जीसस ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। आप मुझे बाइबल के किसी भी वर्जन से ऐसा कोई हवाला दे दें तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक आज ही ईसाई बन जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप बाइबल को पढ़ें तो गॉस्पेल ऑफ जॉन्स में जीसस ने कहा कि मेरा फादर मुझसे बड़ा है, मैं शैतान को भगाता हूं फादर की मेहरबानी से, मैं इंसाफ करता हूं, मैं वही करता हूं जो फादर कहता है। बुक ऑफ फैक्ट में जीसस के बारे में लिखा है कि वो इंसानों में से ही चुना गया जिसे खुदा ने मोजज़ात, अजायबात और निशानियों से नवाजा। तो जीसस ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा हैं। इस दौर में सन ऑफ गॉड का मतलब खुदा का बंदा था। जो खुदा की तालीमात पर चलता वो सन ऑफ गॉड कहलाता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा, आप चाहे बाइबल को मानती हैं या चर्च को, मुझे कोई ऐसी भी आयत बता दें जिसमें यह कहा गया हो कि जीसस खुदा के बेटे हैं। उस खातून ने जवाब दिया कि आप जीत गए। डॉक्टर साहब ने कहा, हार जीत की बात नहीं, जो कुछ मैंने आपको बताया क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि जीसस खुदा के बेटे हैं? उस खातून ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि वो खुदा के पैगंबर हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, आपको एक खुदा पर यकीन है? उस खातून ने कहा, जी मुझे यकीन है कि खुदा एक है। डॉक्टर साहब ने उस खातून को शाबाश दी और बताया कि जीसस ने खुद कहा है कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो मुकद्दस रूह आएगी तुम्हारी रहनुमाई करेगी, वो जो भी बोलेगा अपने रब की मर्जी से बोलेगा। डॉक्टर साहब ने पूछा, इस आयत में ये किसकी बात हो रही है? उस खातून ने जवाब दिया कि बाइबल के मुताबिक होली स्पिरिट की बात हो रही है और मुसलमान कहते हैं ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। डॉक्टर साहब बोले, आप इस्लाम पर यकीन नहीं रखती तो इसको कुछ देर के लिए साइड पर रखते हैं। मुकद्दस रूह वाली से 7 आयत पहले एक और आयत है जिसमें लिखा है कि फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारे लिए बेहतर है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं चला गया तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो उन्होंने जो सुना आगे बता दिया, खुद से कुछ नहीं कहा। और यही बात जीसस ने भी की थी कि मुकद्दस रूह आएगी, वो खुद से कुछ नहीं बोलेगी, जिसका हुक्म होगा वही कहेगी। ओल्ड टेस्टमेंट में मोहम्मद नाम लिखा गया है मगर चर्च नहीं बताता, वो मोहम्मद का लफ्ज मानी प्यारा बताता है। बुक ऑफ आयजा में लिखा है कि जब इसको किताब दी जाएगी कि पढ़ो तो वो कहेगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। और यही हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। It further mentions the book of Isaiah chapter number 29 verse number 12. When the book will be given to him, he will say, I am not learned. When the angel will say, read, he said, I am not learned. This is exactly what happened when Archangel Gabriel gave the book, Jibril salam, when the first revelation came to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it was said to him, Iqra, read. He said, Ma ana biqari, I am not learned. Same thing what happened with Prophet Muhammad is prophesied in the book of Isaiah chapter 29 verse number 12. Which person said, when the angel said read, he said I am not learned? It is Prophet Muhammad. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अभी सिर्फ बाइबल के हवाले दे रहा हूं, अभी तो मैं कुरान पाक पर नहीं आया। मैं तो कह रहा हूं कि इस चीज पर अमल करते हैं जो सब किताबों में मुश्तरक है। क्या आपको मालूम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 25 मरतबा लिया गया है? एक पूरी सूरा मरियम के नाम से है और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। अगर आप एक अच्छी ईसाई हैं तो आपको जीसस और बाइबल की तालीमात को मानना चाहिए। और जीसस और बाइबल की तालीमात के मुताबिक एक और नबी ने आना था जिनका नाम भी बता दिया गया था, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आप क्यों उन पर ईमान नहीं लाएं? क्या आप अच्छी ईसाई नहीं बनना चाहती? उस खातून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया
मैं जीसस और बाइबल पर ईमान रखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं जीसस से आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि मैं उनकी तालीमात पर अमल करता हूँ। सूअर का गोश्त नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता। ईसाई ये दोनों काम करते हैं। बाइबल तो अपनी तालीमात पर अमल दरामद कराने में बहुत सख्त है, मगर फिर भी ईसाई चर्च की मानते हैं, बाइबल की नहीं। बाइबल में लिखा है जो खातून अपना सर नहीं ढांपती उसके बाल काट देने चाहिए। कुरान पाक में ऐसा नहीं है। चर्च में मौजूद नन अपना सर ढांपती है, मगर ईसाई मुसलमान औरतों से कहते हैं कि अपना सर मत ढांपो। क्या ये गलत नहीं? हमें तो जीसस की तालीमात पर अमल करना है तो सर ढांपना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हैं कि वो आखिरी नबी हैं? उस खातून ने जवाब दिया, जी मुझे यकीन है। तो डॉक्टर साहब बोले, फिर तो आप मुसलमान हैं, क्योंकि आप मुसलमान होने की सारी शराइत मान रही हैं। क्या आप अपना ये ईमान अरबी जबान में दोहराना चाहती हैं? वो खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के दलाइल से पूरी तरह मुत्तफिक हो चुकी थी कि इस्लाम ही सच्चा और वाहिद दीन है जो उसे जन्नत में दाखिल करा सकता है। तो उस खातून ने इकरार किया कि वो मुसलमान होना चाहती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को अरबी में कलमा पढ़ाया, फिर उस कलमे का तर्जुमा करके बताया। उस खातून ने शहादत दी कि अल्लाह एक है, कोई उसका शरीक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस खातून को मुबारकबाद की सदाएं बुलंद हुई। ये रूह परवर मनाजिर नाजरीन आप भी देखिए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु again व रसूलुहु। Rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, sister, become Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you more and He grant you Jannah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर में कहा कि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या एक ईसाई जन्नत में जा सकता है, तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप सच्चे ईसाई हैं और चर्च नहीं बल्कि जीसस और बाइबल की तालीमात पर अमल करते हैं तो आप जन्नत में जाएंगे, क्योंकि जीसस ने जो कुछ भी बताया वही इस्लाम में मौजूद है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ये जवाब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। आपके इल्म में बेशुमार इजाफा हुआ होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का ज़रूर विज़िट करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।